Hello students, welcome to my educational channel GravityTech. As you prepare for MH-CET, that is Maharashtra State Common Entrance Test for engineering courses, maths is going to be the key subject in this entrance exam. And in today's video, I will help you out with examples on derivatives of inverse functions and one or two examples of maybe a kind of absolute and the log x functions. Okay. Now, one more. This channel will also help you in long run for engineering mathematics M1, M2, M3. Okay. If you like the content, subscribe to the channel so that you get updates about all the new videos which I'm going to upload in near future, and press the like button of the video and share it with other students as well so that it will benefit most of the needy students. Right, now let's see what are we going to cover as a part of this MSCT entrance exam video, specifically derivatives of inverse functions. Okay, now what is the objective of the session? It's like derivatives of inverse function, and there will be one example on the log x and one example on the absolute function. Okay, now the differential coefficient of tan inverse of under root 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse x is what, right? Now, how to solve these kind of examples? See, let me give you some idea now first, right? Let's say, so let's take some other example maybe. Okay, I'll just maybe take one other example. Let's take an example like differentiate log of x with respect to tan x. हमें डिफरेंशिएट करना है लेकिन log x विद रिस्पेक्ट टू tan x. सो अभी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? यहाँ पे आपको दो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, करेक्ट. सो लेट u इज इक्वल टू व्हाट, log x. मतलब एक को u कंसिडर करना है और एक को v कंसिडर करना है, राइट, tan x. लाइक वन शुड बी f of x एंड अनदर शुड बी g of x. इसको u v ही कंसिडर करना है, ऐसे नहीं आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हो, correct. Now find out the du by dx, find out the dv by dx, and then by chain rule, right, what you need is what du by dv. हमें क्या निकालना है? du by dv निकालना है, right. So du by dv कैसे निकलेगा? du by dx into dx upon dv, correct. लेकिन हमारे पास dv upon dx है, dx upon dv है क्या? नहीं. What does that mean? du upon dx upon dv upon dx. सो सिंपली क्या करना है आपको, जो दो फंक्शंस दिए हुए हैं उनके सेपरेट डेरिवेटिव्स निकालो एंड देन डिवाइड, एक एक को दूसरे से डिवाइड कर दो. सो इन दिस केस du बाई dx आएगा 1 अपॉन x log x का डेरिवेटिव, एंड dv बाई dx आएगा tan x का डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट, sec स्क्वायर x. सो du बाई dx क्या आएगा? dv बाई dx अपॉन dv बाई dx, सो 1 अपॉन x इंटू sec स्क्वायर x, करेक्ट. सो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है. नाउ लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल. यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, करेक्ट, यहाँ पे अलग एग्जांपल है. नाउ व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग, लेट मी जस्ट रब दिस आउट और फिर हम लोग ये वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, डिफरेंशिएट tan of inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse of x. ऐसे करना है, राइट. सो लेट्स से हमें इसको u कंसिडर कर लेते हैं. इफ दिस इज u, लेट्स से दिस इज u. तो अभी सी, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ टिपिकल एग्जांपल. यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू क्या पुट करना है? tan थीटा, करेक्ट. 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको x इज इक्वल टू पुट करना है sin थीटा. एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आपको x इज इक्वल टू पुट करना है sec थीटा, करेक्ट. यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? tan. सो x का वैल्यू tan थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या आएगा? sec थीटा. सो दिस विल बी व्हाट, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, करेक्ट. नाउ
इसे हमको किसी तरीके से tan में लाना है। सो सेक थीटा क्या आता है, 1/cos थीटा। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल बी वन माइनस कॉस थीटा। tan थीटा क्या आता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका अपॉन cos थीटा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। नाउ दिस होल थिंग इज बेसिकली व्हाट, tan थीटा बाय 2। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूं, बट दिस यू शुड बेसिकली अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स से 1 minus cos theta. So see, so 1 will be what, basically a cos square theta by 2 plus sin square theta by 2 minus जो cos theta है ये क्या आएगा, cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 अपॉन ये जो है sin theta क्या आएगा, 2 sin theta by 2 cos theta by 2। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, नाउ दिस प्लस माइनस कैंसल्ड, सो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, करेक्ट। 2 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 दैट इज tan थीटा बाय 2, राइट। अंडरस्टैंड, ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, तभी आप टाइम सेव कर पाओगे। सो ये हो गया थीटा बाय 2, राइट। सो u इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 थीटा क्या है, लेकिन हम लोगों ने यूज किया हुआ है x इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। सो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। सो u इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x। लेकिन हमें जो डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स निकालना है, तो इससे हम क्या क्या मान लेते हैं, v, राइट। सो दिस विल बेसिकली व्हाट, v बाय 2, राइट। सो u इज इक्वल टू व्हाट, v बाय 2। सो du बाय dv क्या आ जाएगा, 1/2, एंड दैट्स द आंसर, करेक्ट। तो हमको वो dv बाय dx निकालने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज, राइट। सो होप यू अंडरस्टूड। यहाँ से बहुत सारी चीजें अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप विद इन 1 मिनट इसको कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट। सी, इसको यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा, सो ये हो जाएगा sec थीटा 1 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट tan स्क्वायर, sorry 1 plus tan square will be sec square, under root sec square will be sec theta minus 1 upon tan theta, sec theta will be 1 upon cos theta minus 1, 1 minus cos theta upon cos theta, sin upon cos, cos cancel, so 1 minus cos theta upon sin theta, 1 minus cos theta upon sin theta, tan theta by 2 आता है, मैंने अभी आपको दिखाया, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा by 2, राइट। सो थीटा का वैल्यू आता है यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x, so u is equal to what, 1/2 tan inverse of x। Now let v is equal to what, tan inverse of x। Now ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, so u will be equal to what, v by 2। So du by dv क्या आ गया, 1/2। So the answer of this is going to be what, 1/2। Easy। Next question। Now see, the next question says basically y is equal to tan of inverse a cos of x minus b sin x upon b cos of x plus a sin x, देन डिवाइड बाय dx क्या आएगा। सी नाउ इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी आपको 1 या 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो आपके 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे रहेंगे जहां पे आपको 2 मिनट लगेंगे। सो आपको मेक श्योर आपको टाइम मैनेज करना है, कौन सा एग्जाम्पल का 30 सेकंड दूसरे एग्जाम्पल को यूज करना है और कौन सा एग्जाम्पल का 30 सेकंड बचाना है। tan इनवर्स ये दिया हुआ है a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। अभी देखिए यहाँ पे tan है तो हमको यहाँ पे कहीं पे tan लाना है, tan लाना है मतलब cos से डिवाइड करना है। अगर cos से डिवाइड करना है तो सी यहाँ पे a cos x है, b cos x है, b cos x से हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, राइट। डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय b cos x। सो वो क्या आ जाएगा, व्हेन यू डिवाइडेड बाय b cos x कैंसिल, सो ये आ जाएगा a अपॉन b माइनस b कैंसिल, साइन अपॉन cos विल बी व्हाट, tan x आ जाएगा अपॉन b cos x इज 1 प्लस a अपॉन b एंड sin x अपॉन cos x विल बी व्हाट, tan x। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज करना है, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई अगर है तो क्या आता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, करेक्ट।
तो यहाँ पे ये आ गया आपका x और ये आ गया y. सो y इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस tan inverse of tan of x, right? Now y is equal to tan inverse of a upon b. Tan inverse and tan will be cancelled, so this is going to be what, your just x. So when you take dy by dx, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0 और इसका आएगा 1, सो दिस इज इक्वल टू -1. सो आंसर आ गया -1. इजी. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. सी, बेसिकली जब यहाँ पे जो है कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे कॉस लाने की कोशिश करो, टैन इनवर्स है टैन, साइन इनवर्स है साइन, सेक इनवर्स है सेक. इस तरीके से आपको अप्रोच करना है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए. ओके. सो एंड फॉर्मूलाज, आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपका बहुत मतलब ज्यादा वक्त जा सकता है एग्जाम्पल सॉल्व करने में. राइट, लेट्स सी नाउ हाउ इट इज दिस. राइट, सी. सो हम लोगों ने बी कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये ए बाई बी माइनस टैन एक्स हो गया, 1 प्लस ए अपॉन बी टैन एक्स हो गया. Right, when you apply this formula tan inverse का x minus y का, right, this is going to be right tan inverse of a upon b tan inverse of tan x. Tan inverse tan cancel हो जाता है, so this will be just x. Now when you take a derivative of this is a constant, so 0 and -1 divided by dx is equal to what, -1. Easy. Let's take the next one. Now the next one they are saying find out the first derivative of the function cos inverse of sine of 1 plus x upon 2 plus x raised to x. अभी इसे कैसे सॉल्व करना है? See, so the example what I remember is this: y is equal to cos of inverse, correct? Then sine of under root 1 plus x upon 2 and plus x raised to x, ऐसे है. सो ये वाला अलग है और ये वाला अलग है. इन दोनों के डेरिवेटिव सेपरेट करो और ऐड कर दो. इसका डेरिवेटिव तो इजी रहेगा x raised to x का. अभी लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस वन. सो सी, नाउ यहाँ पे y है, राइट, cos इनवर्स. अगर समहाउ यहाँ पे cos लेके आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सी, नाउ वी नो sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा. ये 90 डिग्री का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. राइट, सी, सो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2, करेक्ट. ये x रेस टू x ऐसे कैसे रख देते हम लोग पहले. सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos कैंसिल, सो ये क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एंड x रेस टू x, करेक्ट. सो ये हो गया आपका y. तो dy बाय dx क्या आएगा, dy बाय dx विल बी व्हाट, इसका तो डेरिवेटिव 0 आ गया, करेक्ट. नाउ सिंस इसका डेरिवेटिव 0, ये 1 बाय रूट 2 बाहर आ गया. अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1 प्लस. अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हमको सेपरेटली निकालना पड़ेगा. सो लेट्स से v इज इक्वल टू व्हाट, x रेस टू x. और जब भी f ऑफ x रेस टू g ऑफ x होता है तो दोनों जगह पे log पुट करके ही डेरिवेटिव निकलते हैं. सो पुट द log ऑफ v इज इक्वल टू व्हाट, x log x आ जाएगा, x आगे आ जाएगा. सो व्हेन यू टेक अ डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, x log x का डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव, सो कैंसिल. So dv by dx क्या आया, this is 1 plus log x, correct, and then v on this side, so x raised to x. So ये हो गया x raised to x 1 plus log x, right. Now हमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है at x is equal to 1. So dy by dx at x is equal to 1. Just value put करो x का as a 1, right. 1 plus 1 will be 2, right. So 1 upon 2 under root 2 plus 1 raised to 1 is 1. 1 plus log of 1. Log of 1 will be 0, right. So 1 into 1 is 1. So this is going to be minus 1. Root 2 into root 2 is 2. 2 into 2 is 4. Plus 1 into 1 is going to be 1. So minus 1 by 4 plus 1 is going to be what? 3 by 4. So answer क्या आ गया? 3 by 4. Correct? Now let's see. Is that the one? Correct? See. So f of x will be what? This whole thing. तो जो साइन है, साइन को 90
माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज किया, सो कॉस हो गया, कॉस कॉस कैंसिल, पाई बाय 2 एंड देन होल थिंग, दिस इज हाउ, राइट। व्हेन ना इसका डेरिवेटिव सेपरेटली निकाला इन यहाँ पे, सो u इज इक्वल टू एक्स टू एक्स लॉग ऑफ u एक्स लॉग x, राइट। सो इसका डेरिवेटिव आ गया एक्स टू एक्स 1 प्लस लॉग x, राइट। सो ये इसका डेरिवेटिव, नाउ पुट द डेरिवेटिव, माफ, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस x, सो दिस इज द होल डेरिवेटिव, right? Now put the value of x is equal to what? 1. So when you put x is equal to 1, this is going to be what? 1 by 4 completely. Minus 1 by 4 and this is 1. So that's 3 by 4, right? Now, the next question says, right, what is the next question? Next question is sine square cot of inverse and then under root 1 plus x upon 1 minus x with respect to x. देखिए, जितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लग रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड वो है नहीं. ओके, नाउ यू नीड टू बेसिकली जस्ट स्टार्ट थिंकिंग टूवर्ड्स हाउ यू कैन solve it, right? What is the approach you should basically take to solve that? Correct. Now let's see what is the example and how to solve it. Let me just put that on a here first. Correct. Now, okay, and now the question is y is equal to, yeah, now how to get out of this, right? Let me just open the new one. So yes, yeah, so what they have is y is equal to sine square of cot of inverse 1 plus x 1 minus x, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. अभी कैसे करेंगे? सी, सो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग टूवर्ड्स कि यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो यहाँ पे कॉट लाना है, राइट right? यहाँ पे कॉट लाना है तो मतलब समवेयर यहाँ पे x का वैल्यू कुछ तो हमको रिप्लेस करना पड़ेगा जो यहाँ पे हमको कॉट दे दे. सो जनरली सिंस दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस x, राइट, सो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू cos लेंगे, राइट, सो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा. लेट्स मे बी ट्राई टू पुट दैट वे, राइट. पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, करेक्ट. अगर x इज इक्वल टू cos थीटा पुट किया तो 1 प्लस x 1 माइनस x क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा. अगर आप इसको थीटा बाई 2 के इसमें कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आ जाता है 2 sin square theta by 2. So 2 cancel, right? And this is going to be what? Cot square theta by 2. So ये यहाँ पे आ जाएगा. So y is equal to क्या आ गया? Sin square cot of inverse, right? Under root cot square theta by 2. Now under root and square cancel. So y is equal to sin square cot of inverse cot of theta by 2. Correct. Now let me just scroll this down. तो यहाँ पे cot cot inverse क्या आ जाएगा? कैंसिल, दिस टू विल बी कैंसल्ड आउट. सो y इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. करेक्ट. नाउ इसका तो हमको फॉर्मूला पता है. सो व्हेन यू टेक dy बाय डी थीटा, हमें क्या पुट करना है अभी? थीटा. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू पुट differentiate with respect to theta. So what it will be? Correct. So this will be 2 sin theta by 2. Correct. साइन थीटा का डेरिवेटिव आता है cos थीटा बाय 2 एंड अगेन थीटा बाय 2 का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो आएगा हाफ. सो 2 बेसिकली क्या आ जाता है? कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, राइट. लेकिन हमको यहाँ पे कैंसिल करके आई थिंक हम कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ पे. वाई? बिकॉज सी, ये जो 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 है वो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा. सो साइन थीटा बाय 2 आएगा. सो डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू वॉट? साइन थीटा बाय 2. लेकिन हमें क्या निकालना है? वी वांट टू फाइंड आउट dy बाय डी एक्स. सो dy बाय डी एक्स कैसे आएगा? dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स. करेक्ट. तो यहाँ पे हमने क्या रिप्लेस किया था? x इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट. नाउ थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉस इनवर्स ऑफ x. सो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या आएगा? कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव है इट विल बी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. और अगर इस तरीके से नहीं करना है हमें, राइट, so maybe we can also do this way, right? See, so
dx by d थीटा, dx by d थीटा क्या आएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन थीटा। नाउ यहाँ पे जब हम फॉर्मूला यूज कर ले dy बाय डी थीटा, डी थीटा बाय डी एक्स है ना, सो अगर हमें dx बाय डी थीटा यूज करना तो हम डिवाइड कर लेंगे, करेक्ट। सो डन। सो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा ये है और ये dx बाय डी थीटा है। सो साइन थीटा बाय 2 अपॉन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कैंसल, सो माइनस वन हाफ इज द आंसर। सो dy बाय dx क्या आया, वन अपॉन माइनस वन हाफ, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज इजी। सो सी, यहाँ पे आपको टाइम सेव करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे जैसे मुझे पता लगा कि नहीं कॉस इनवर्स एक्स इज गोइंग टू मेक कॉम्प्लिकेटेड, तो मैंने उसको कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा इजी करने का कोशिश किया कि चेन रूल को मैंने डिवाइड डिवीजन में कन्वर्ट करके यूज कर लिया। सो दैट्स हाउ बेसिकली यू शुड आल्सो थिंक टूवर्ड्स, राइट। सो बिकॉज द अप्रोच ऑलवेज मैटर्स, और ये अप्रोच आपको कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अनलेस यू प्रैक्टिस, आपको ये वाली चीजें ज्यादा ऐसे समझ में नहीं आएगी, राइट। सो लेट्स मे बी सी हाउ दैट इज। सी, सो x इज इक्वल टू cos थीटा, सो थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ x। इसको हमने अभी सॉल्व किया था, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट, सो कॉट थीटा बाई 2। नाउ कॉट इनवर्स एंड कॉट विल बी कैंसिल, सो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, राइट। सो y इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो dy बाई डी थीटा का आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव दैट इज 1 हाफ, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन थीटा अपॉन 2। नाउ x is equal to cos theta, so dx by d theta क्या आएगा, माइनस sin theta, correct। So dy by dx will be what, dy by d theta into d theta by dx, लेकिन हमारे पास dx by d theta है तो ये अपॉन हो जाएगा, so माइनस sin theta upon 2 upon sin theta cancel, and that's the minus half। Hope you understand it, right? Now this is the example on that front, right? Sin square plus cos inverse. Now next example they are saying is like y is equal to cos inverse of x minus x raised to minus 1, x plus x raised to minus 1, then what will be the dy by dx। See, again it is going to be kind of easy example, लेकिन आपको कैसे solve करना है वो important है, correct। So the example what I remember here is what, y is equal to cos of inverse x minus x raised to minus 1, x plus x raised to minus 1, करेक्ट। तो इसको पहले हम लोग रेस टू माइनस वन जो है उसे अपॉन कर ले, तो x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये वाला स्टेप आपको आपके दिमाग में ऐसे कैसे कर लेना, राइट। यू डोंट नीड टू बेसिकली राइट इट। सो ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दैट्स हाउ योर प्रैक्टिस शुड बी, राइट। नाउ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, सो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग, tan थीटा पुट करेंगे। अगर tan थीटा पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, दैट इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। और एक्स स्क्वायर माइनस वन विल बी tan स्क्वायर माइनस वन। सो y इज इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ इनवर्स tan स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। नाउ इसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं माइनस कॉस टू थीटा, लेकिन ये कैसे आया, राइट। You should basically remember know how the minus cos theta has come. Let me maybe tell you. Tan square theta minus 1 upon what, sec square theta। अब इसको पूरा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते। tan स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये क्या है, 1 अपॉन, सो दिस विल बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, करेक्ट, इस तरीके से। नाउ व्हेन यू से साइन स्क्वायर, सो दिस विल बी व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया ये, करेक्ट। सो ये आ गया, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाला तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर क्या थीटा क्या आता है, कॉस ऑफ टू थीटा। सो माइनस कॉस टू थीटा इज दिस थिंग। सो y इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ इनवर्स माइनस कॉस ऑफ टू थीटा। अभी हम यहाँ पे माइनस साइन, सो डायरेक्टली कॉस कॉस इनवर्स हम कट नहीं कर सकते। सो y
what it would be, right? Cos of inverse minus cos theta is equal to going to be what? Cos of pi minus 2 theta. So हमें ये पता है कि माइनस cos x कब आता है? जब cos of pi minus x. This is a formula, correct? So ये formula हमने यहाँ पे use किया. Let me just scroll up. Yeah. So cos inverse क्या हो गया? Cancel. So this is going to be what? Y is equal to pi minus 2 theta. Correct. और थीटा पता है हमको. थीटा हमने क्या रखा था? tan inverse of x. अभी इसका डेरिवेटिव निकालो, dy by dx. पाई का तो डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, माइनस टू. tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस x square. So derivative will be what? Minus 2/1 plus x square. Easy. So see, the whole thing depends on ki how you approach to solve the question, rather than जब आपको पता है आपको चार आंसर्स दिए हुए, राइट? उस आंसर्स में वो उन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है आंसर, दैट वे मे बी यू माइट नीड टू अप्रोच सम टाइम, not always but sometime, right? So the questions are not hard, examples are not hard, yes, but the practice, if you don't do right, that is going to basically put you in a trouble. Practice is something you will make you the perfect, right? Now let's see how it is, right? How we can put that in a here on slide. So y is equal to this 1 upon x, 1 upon x, x is to minus 1 ko x square minus 1, x square plus 1, x is equal to tan theta. So tan square minus 1, tan square plus 1, that is sec square, right? And this is how minus cos theta 2 theta kaise aaya. We basically saw it, right? Somehow basically आप इसको आपके दिमाग में भी रख सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, एटलीस्ट 10 सेकंड्स तो सेव हो ही जाएंगे. सो माइनस cos x मतलब पाई cos of pi minus x. So cos inverse cancel, pi minus 2 theta. Theta is what? Tan inverse of x. So y is equal to what? Pi minus 2 tan inverse of x. So derivative of pi is going to be 0 minus 2 upon 1 plus x square. Easy. Now the next question what they are saying is tan inverse of cos of upon 1 plus sin x. See, ये बहुत easy example है. Now how it is? आप अगर यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने दिया हुआ है y is equal to tan inverse cos of x upon 1 plus sin x, right? See, अभी यहाँ पे tan है, हमको चाहिए tan, correct? Now how we will be able to put the tan in, right? So tan inverse, see, cos of 2x का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? cos square x minus sin square x. So इसी तरीके से जाना है. So यहाँ पे क्या आएगा? cos square x by 2 minus sin square x by 2. और ये जो है 1 मतलब क्या? cos square x by 2 plus sin square x by 2, identity, and then plus sin x will be what? 2 sin of x by 2 cos of x by 2. Okay, now this is going to be what? Tan inverse cos square a square minus b square का formula, cos of x by 2 plus sin of x by 2 cos of x by 2 minus sin of x by 2, correct? Upon, now a square plus b square plus twice ab, this is going to be cos of x by 2 plus sin of x by 2 square. ये एक कैंसिल हो गया, ए एक कैंसिल हो गया, राइट? इसका ब्रैकेट एंड कर देना है यहाँ पे हमको. सो tan इनवर्स क्या आएगा? cos of x by 2 माइनस sin of x by 2 अपॉन cos of x by 2 प्लस sin of x by 2. अभी आगे इसको क्या करना है, राइट? लेट मी स्क्रॉल दिस अप. सी, अभी आप यहाँ पे हमको tan इनवर्स है, सो यहाँ पे भी tan आना चाहिए, sin अपॉन cos. सो cos of x by 2 से क्या करो? डिवाइड कर दो. When you divide by cos of x by 2, it is going to be what? Tan in of inverse 1 आएगा, sin upon cos आएगा, tan of x by 2, यहाँ पे 1 plus sin upon cos again आएगा, tan of x by 2, correct? Now this 1 you can basically write it as a tan pi by 4. ये जो 1 है इसे पुट कर दो tan of pi by 4. so ये tan x ऐसे के ऐसे, राइट? 1 प्लस यहाँ पे भी 1 ने मल्टीप्लाई किया, ऐसे एज्यूम करो, और यहाँ पे 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? tan pi by 4 tan of x by 2. This is x by 2, correct? See, मैंने यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट क्यों किया? बिकॉज आई कैन यूज tan of a minus b वाला फॉर्मूला. So this is going to give me
tan of pi by 4 minus x by 2. करेक्ट. सो tan इनवर्स कैंसिल. सो y क्या आ गया? पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. और अभी तो इसका डेरिवेटिव तो इजी है, डी बाई डी एक्स आएगा, इसका तो जीरो आ गया, एंड दिस विल बी माइनस हाफ. सो डेरिवेटिव ऑफ दैट होल स्टफ इज व्हाट? माइनस हाफ. हार्ड था क्या? नहीं. दैट वाज अ प्रीटी इजी थिंग. करेक्ट. सो इट्स नॉट हार्ड, right? Let me just maybe now rub this up, right? Yeah. So 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस सॉरी कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं. कॉस एक्स आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू. 1 प्लस साइन एक्स आएगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू का स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इसमें से एक cos x by 2 प्लस sin x by 2 कैंसिल हो जाएगा. सो cos of x by 2 माइनस sin of x by 2 अपॉन cos x by 2 plus sin x by 2 आएगा. नाउ इसको tan में कन्वर्ट करना है. सो डिवाइड बाय cos of x by 2 ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. So that will be 1 minus tan of x by 2 upon 1 plus tan of x by 2. Now this is something 1 का वैल्यू हमको pi by tan of pi by 4 पुट करना है. So tan of pi by 4, tan of pi by 4, this will give us tan of pi by 4 minus x by 2. Right? अभी इसको हमको यहाँ पे पुट करना है. Tan inverse of tan will be cancelled. So y will be equal to what? Pi by 4 minus x by 2. And when you take a derivative of this is going to be 0 and minus half. So minus half is the derivative. Easy? Now, what is the next question now? See, next question इजी है, लेकिन आपको अगर इसका फॉर्मूला पता है तो इजी है, अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो देन ये हार्ड है. राइट. नाउ सी व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज. राइट. सो द क्वेश्चन व्हाट दे हैव इज, let me just select a pen first. Yeah. So the question is y is equal to sine inverse x under root 1 minus x plus under root x under root 1 minus x square. करेक्ट. अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा. राइट. व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू इट हियर. लेट मी जस्ट स्लाइटली एडजस्ट इट. ये एक्स ऐसे के ऐसे रखता हूं. 1 माइनस इस एक्स को मैं अंडर रूट एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर कर देता हूं, एंड देन प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके. नाउ दिस इज द वन थिंग. नाउ वी नो द फॉर्मूला. हमारे पास एक फॉर्मूला है. विच फॉर्मूला वी हैव? फॉर्मूला इज लाइक दिस. साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी. इसका जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ, राइट, ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ओके, प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर. इस तरीके से फॉर्मूला. अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ए इज व्हाट? एक्स, और बी इज व्हाट? अंडर रूट एक्स. करेक्ट. तो ये वाला जो है ये आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो. y इज इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ बेसिकली एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स. इजी. अब इसका डेरिवेटिव निकालना इजी. डी वाई बाई डी एक्स. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर आएगा एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ होल दिस थिंग अगेन, राइट, 2 अंडर रूट एक्स. करेक्ट. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. सो दैट्स व्हाट द डी वाई बाई डी एक्स इज. हो सकता है आपको डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से दिया हो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, राइट, 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स. हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में जो है, राइट, ये स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी, जो क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं लोग, 1 अपॉन 2 एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. सो दिस इज हाउ. सो इन तीनों में से आपको जो भी आंसर दिया होगा आपको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन पेपर. इजी. So that was the one. Hopefully you understood, right, how it is. So you need to basically use the formula of sine of inverse A plus sine of inverse B, right, and then which reduces that to a very very simple thing, and you can basically easily solve that question, right. Let's see now. So this is what it is. We use sine inverse of x plus sine inverse of y formula that gives us sine inverse of x plus sine inverse of under root x. So when you differentiate with respect to x, right, sine inverse of x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आता है 1 upon under root x 1 minus x square, and the derivative of this is going to be about 1 upon 2 under root x under root 1 minus x. So
जिसको जस्ट यहाँ पे क्लब कर दिया है एंड देन x को अंदर ले लिया, सो x माइनस एक्स स्क्वायर इजी, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे हैव इज, सी ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्वेश्चन बट नॉट really that hard, right? See, f of x is equal to cos inverse of 1 minus log x bracket square 1 plus log x bracket square, then the value of f dash e निकालना है हमको। सी अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दो तरीके से मतलब कौन सा? द वेरी फर्स्ट थिंग कि आप log of x स्क्वायर को log of x को tan x करके रिप्लेस करो, या फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालो। नाउ f of x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? cos of inverse 1 minus log of x bracket square minus upon 1 plus log of x bracket square, करेक्ट? इस तरीके से दिया हुआ। नाउ सी सबसे पहले तो हम इसको f of e निकाल लेते हैं। अगर आप f of e की बात करो, यहाँ पे x का वैल्यू आएगा e, log of e आता है 1, राइट? सो 1 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 0, सो 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0, सो cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ 0 क्या आता है? cos इनवर्स ऑफ 0 is equal to what? Pi by 2, ध्यान में रखना, राइट? सो दिस इज f of e, ओके। नाउ अभी हम इसको इस cos को इस तरफ ले लेते हैं, सो cos ऑफ f of x, सो इधर बचा क्या? log of x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस log of x ब्रैकेट स्क्वायर। कुछ कुछ एग्जांपल्स लेंदी होते हैं बट सभी नहीं, ओके? कुछ कुछ एग्जांपल्स लेंदी होते हैं लेकिन सभी। नाउ लेट्स टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ओके? नाउ व्हेन यू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस, राइट, cos का डेरिवेटिव आएगा sin ऑफ f of x एंड अगेन इसका डेरिवेटिव, सो f dash of x, करेक्ट? नाउ दिस इज u upon v, u upon v का रूल क्या है? v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर, करेक्ट? तो यहाँ पे 1 प्लस log of x ब्रैकेट स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, राइट? इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, ये जो है, राइट, ताकि हम उसको पूरी तरीके से लिख पाए यहाँ पे, ओके? नाउ ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस दिस विल बी व्हाट? 2 log x एंड अगेन log x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड माइनस 1 माइनस log x स्क्वायर एज इट इज एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, सो इसका आएगा 0, 2 log x अपॉन x, करेक्ट? अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। सी थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन उतना हार्ड है नहीं एग्जांपल, ओके? नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू नीड? यू बेसिकली नीड f dash of e। हमें क्या चाहिए? f dash of e। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू नीड, राइट? तो x का वैल्यू क्या पुट कर दो डायरेक्टली? e, और हमें पता है log x मतलब क्या? log e क्या आएगा? 1, राइट? सो सी अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं, सो साइन ऑफ f of e, करेक्ट, इनटू f dash of e, log of e आता है 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, इनटू 0 तो चला गया, 2 log of e is what? 1, 1 upon e, right? So 2 minus 2 upon e minus 1 minus log of x e आता है 1, 1 square is 1, 1 minus 1 is 0, 0 into anything is going to be 0 upon 1 plus log of e आता है 1, 1 square is 1, 1 plus 1 is what? 2, 2 square is what? 4. So this is going to be what? Minus 4 by e upon 4, so आ गया minus 1 upon e, राइट? लेकिन यहाँ पे भी साइन ऑफ ई क्या है? पाई बाय 2। हमने एफ ऑफ ई क्या है? पाई बाय 2 हमने फर्स्ट निकाला, राइट? सो साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू एफ डैश ऑफ ई इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1 अपॉन ई। लेकिन साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या आता है? 1, सो दिस विल बी 1, सो एफ डैश ऑफ ई क्या आ गया? 1 अपॉन ई। ये वाला स्टेप आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा लेकिन इजी है, राइट? इट्स नॉट हार्ड, ओके? सो आपको अगर
u अपॉन v का रूल अच्छे से यूज करना आता है डेरिवेटिव का, तो ये आपको कुछ भी हार्ड नहीं जाएगा. ओके, नाउ let me just maybe rub this out and then we'll go to the slides, right, where I have that maybe solved, which you will understand and then which basically help you to solve it within a minute. Yeah, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप अगर ये खुद फॉलो करोगे और विद द प्रॉपर स्टेप्स आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट. सो ये एफ ऑफ एक्स है, हमने पहले एफ ऑफ ई निकाल लिया, यहाँ पे लॉग ई 1 0 cos इनवर्स ऑफ 0 is going to pi by 2. नाउ इस cos को यहाँ पे ले लिया, cos of f of x is equal to this u upon v का रूल. नाउ टेकिंग द डेरिवेटिव्स वी गेट माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, ओ सॉरी दैट इज माइनस साइन, राइट. जो मैंने एग्जांपल लिया है वहां पे माइनस साइन होना चाहिए. माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ ई एक्स, v as it is derivative of u, that is 0 2 log x upon x, minus u as it is derivative of v, that is 0 plus 2 log x upon x. यहाँ पे माइनस है, राइट. देन यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली वैल्यू क्या पुट किया हमने, e. सो माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ ई एफ डैश ऑफ ई 1, this is going to be 2, this is as it is, right. 2 upon minus 2 upon e, this will be 0 upon 0 into anything is going to be 0. So 2, this is 2 squared, 4 4 cancel, minus 1 upon e, correct. So but f of e is pi by 2, sin of pi by 2 is 1, this is minus 1, minus minus cancel हो जाएगा दोनों साइड से. So f dash e आएगा 1 upon e. Okay, so correct that. Now next, what is the derivative of x mod of x? अभी mod of x का फंक्शन आपको पता होना चाहिए. mod of x क्या होता है? What do you think? mod of x का जो फंक्शन होता है, mod of x होता है, see mod of x डिफाइन होता है, mod of x is equal to x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x इफ x इज लेस देन 0 है. ओके, तो यहाँ पे हमको जो फंक्शन दिया हुआ है वो है f of x. क्या दिया हुआ है? x इंटू मॉड x. तो ये भी हम दो तरीके से डिफाइन कर पाएंगे. सो दिस इंप्लाइज दैट f of x is equal to x into x will be x square, बट कब? जब x क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. और अगर ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट. सो हमारे पास अभी दो केस है. f ऑफ x एक तो x स्क्वायर आएगा, f ऑफ x एक तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x, राइट. दिस 2x को मॉड x लिख सकते हैं, यहाँ पे 2, और माइनस x को क्या लिख सकते हैं? फिर से मॉड x लिख सकते हैं. सो बेसिकली f डैश ऑफ x जो है, f डैश ऑफ x, f dash of x. So this implies that f dash of x is equal to what? 2 mod x, right? Easy. That was the answer. So इसका डेरिवेटिव आता है 2 mod x. Okay. Now let's see. बहुत इजी है. 5 स्टेप में तो इसका आंसर आ गया. 5 स्टेप में से 2 स्टेप तो आप मतलब आपके माइंड में ही आपको कर लेने हैं. ओके, और ये 15 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. अगर यहाँ पे 15 सेकंड में आपने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब इसके जो 45 सेकंड्स है आप किसी और एग्जांपल को यूज कर सकते हो. f of x इक्वल x mod x, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर, लेस देन 0 है तो माइनस एक्स स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, 2 mod x. इसका आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी अगेन 2 mod x, राइट. सो f dash x क्या आता है? 2 mod x. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दे आर सेइंग डेरिवेटिव ऑफ log of x to x with respect to x. डेरिवेटिव ऑफ log of x to x with respect to x. अभी इसको कैसे सॉल्व करना है? See, it's easy again, right? Let's maybe do it like this. So the question is, they are saying log of x to x का with respect to derivative निकालो log x, correct. So let's say this is u log x raised to x and this is v log x, right. इसका डेरिवेटिव तो इजी आ जाएगा, dv अपॉन dx है 1 अपॉन x. ना हमें निकालना है du बाई dx, लेकिन ए फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन है, सो दोनों तरफ log हम पुट करेंगे. log ऑफ u इज इक्वल टू x log ऑफ x आ जाएगा, x log ऑफ x. अभी इसका डेरिवेटिव निकालो, ये आएगा 1 अपॉन u du बाई dx, राइट. x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, log ऑफ x का डेरिवेटिव log ऑफ
1/log x, और फिर से log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x, करेक्ट, प्लस log of x एज इट इज, log of x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव आएगा 1, सो उसकी कोई जरूरत नहीं, x कैंसल। सो आंसर क्या आया, 1/log x log of x, करेक्ट। ये यहाँ पे u डिवाइड कर रहा है, ये इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, और u क्या है, log of x रेस टू x। सो ये जो है, ये बेसिकली क्या आएगा, log of x रेस टू x 1/log x प्लस log of x, राइट। दिस इज योर du by dx, और dv by dx है हमारा 1/x, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है, हमको चाहिए du/dv, तो वो क्या आएगा, राइट, du/dx अपॉन dv/dx, मतलब क्या, अपॉन 1/x, मतलब ये 1/x है तो x ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई कर, सो फाइनल आंसर आएगा x log of x is to x 1/log of x प्लस log of x। लेकिन इसका और एक आंसर भी एक्चुअली वो दे सकते हैं, मे बी, राइट, कैसे, दिस माइट नॉट बी देयर बट मे कम, राइट। सी अभी इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस log of x एंड इनटू अगेन log x, करेक्ट, एंड अपॉन क्या आ गया, ये log x आ गया। नाउ दिस इज log x is to x, log x अपॉन है, तो ये आ गया x log of x raised to x minus 1, and then the whole thing is as it is, right, 1 plus इस log x को आगे ले लेते हैं, right, log x into log of x, right, correct। so this is the answer, ये आ सकता है, या ये फिर ये भी आंसर आ सकता है, या फिर ये भी आंसर आ सकता है, तीनों में से जो रहेगा वो आपको आंसर पुट करना है, राइट, और सिलेक्ट करना है। so let's see now it is y is equal to log x raised to x, so take logs on both sides, यहाँ पे मैंने u लिया हुआ था एग्जांपल सॉल्व करते वक्त, यहाँ पे मैंने y लिया हुआ, log y x log of x, so differentiate with respect to x 1/y divided by dx, x log x upon log x, और फिर से log x का डेरिवेटिव 1/x, x कैंसल, log of x, so ये जो y है यहाँ पे इस तरफ जाएगा, so this will be log of x to x 1/log x log of x, this is divided by dx। सिमिलरली हमारे पास u है log x, so du by dx आएगा 1/x, हमें निकालना है dy by dx dy by du, dy by du निकालना है, so dy by dx upon dx by du, लेकिन हमारे पास dx by du नहीं है, हमारे पास du by dx है, राइट। सो dx by du क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, x, राइट, सो x into the whole thing, done, that was the answer, right। now that's what actually I had it from this video। अगर आपको कंटेंट्स पसंद आए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट आपको ये पूरे इंजीनियरिंग में भी इस चैनल पे आपको हेल्प हो, और बाकी के दूसरे विद्यार्थियों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ हो, राइट। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विश यू हैप्पी लर्निंग विद द ग्रेविटी टेक। थैंक यू।